Students, today we'll start from question number 8 of exercise 6, exponents. So let us solve this sum. So here we have 3 raised to n and 9 raised to n plus 1, because we know 9 is equals to 3 square. So 9 raised to n plus 1 can be written as 3 square into n plus 1. So this 2 will go inside and get multiplied. So you have 2n plus 2. So we get 3 raised to 2n plus 2. Similarly, now coming to the bottom, this 9 raised to n minus 1 will become 3 raised to 2n minus 2, because हमको मालूम है 9 क्या होता है 3 का square. Now look here, the purpose of the sum was to make the common base. अब हम जानते हैं अगर a raised to m into a raised to n हो तो हम उसको a raised to m plus n कर देते हैं. So this is what I am going to do. यहाँ पे 3 common base है, देखो इधर भी है इधर भी है. So ये हो जाएगा n plus 2n plus 2. नीचे भी यही है, 3 common base है n minus plus 2n minus 2. अब सम अप कर दो सबको. देखो ये जो यहाँ पर जो चीजें हैं इसे हमें सम अप कर देना है. सो व्हाट डू आई गेट? इस तरफ क्या मिलेगा हमें? 3n प्लस 2. और डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा मुझे? 3 रेज टू, देखो अब n प्लस 3n कितना हो गया? 4n minus 1 minus 2 minus 3. दिस इज हाउ वी गो. नाउ अब हमारा एक और रूल आएगा, a रेस टू m अपॉन a रेस टू n है तो हम क्या करते हैं? a रेस टू m माइनस n. सेम 3 रेस टू 3n प्लस 2 माइनस 4n माइनस 3. So what do I get? 3 raised to 3n plus 2 minus 4n plus 3. So I'll get 3 raised to minus n plus 5. So what can I do now? Oh, so here I think नहीं ये correction है. इधर 2n था हमारा because this was 2. 2n है. So ये 2 plus 1 3 हो जाएगा. So we'll be having 3n here. So 3 minus 3n ये चला जाएगा आपका. So won't be having any n. So अब आपका बचा क्या है यहाँ पर? देखो. So 2 plus 3 that is 5. So 3 raised to 5 is your simplified answer. Now in question number 9 we know 27 को हम 3 का क्यूब और 8 को 2 का क्यूब, 18 को 2 into 9 that means 2 into 3 क्यूब. So इसी चीज का हम यहाँ पर यूज करेंगे. So this becomes 3 raised to 3 into 2n by 3 जो पहले से था. 8 will be written as 2 cube into minus n by 6. Now denominator 18 है उसको हम लिखेंगे 2 into 3 square whole raised to minus n by 2. अभी हमको सिंप्लीफाई करना है. तो ये हो जाएगा 3 raised to 2n. देखो ये और ये कट गया, यहाँ पे भी ये जाएगा तो 2 बचेगा. So 2 raised to minus n by 2 upon 2 raised to minus n by 2 and 3 raised to 2 into minus n by 2. अभी आप अच्छे से देखोगे तो ये पूरा और ये पूरा कैंसल हो जाएगा. 3 raised to 2n upon 3 raised to ये 2 और 2 भी गया minus n. Now 3 raised to 2n minus n. माइनस n क्यों आया? देखो a raised to m upon a raised to n अगर हम लगाते हैं तो a raised to m minus n होता है. तो ये जो माइनस का साइन है ये फॉर्मूले का साइन है और ये माइनस n पहले से ही था तो वो माइनस n एज इट इज कंटिन्यू हो रहा है. So don't have to get confused among these things. Now back to this 3 raised to 2n plus n कितना हो जाएगा? 3 raised to 3n and this has been simplified. Now moving on to the next question. Here we have this.
अभी इसमें भी 25 मीन्स 5 का स्क्वायर और 125 मतलब 5 का क्यूब है. So we'll be having 5 raised to 2n plus 6 to the 12 and 5 raised to minus 7 to the 14 plus 4n. So this is what you have to keep. देखो बेस कॉमन बनाना ही हमारा पर्पस है. 5 raised to 3 into 2n. So we have 5 raised to 2n plus 2 और ये वाले को भी प्लस कर देंगे माइनस 14 प्लस 4n and denominator में 5 raised to 6n. Now look at this. 5 raised to 2n plus 4n कितना हो जाएगा 6n and 2 minus 14 will be minus 12 and 5 raised to 6n. So we'll take 5 raised to 6n minus 12 minus 6n. 6 and 6n gone, 5 raised to minus 12. That becomes 1 upon 5 raised to 12. So I hope this is your answer. No, wait, here we have done a mistake. ये 12 था. Yeah, so 12 minus 14 करेंगे. So you won't get minus 12, but आपको वो मिलेगा minus 2. So you'll be having minus 2. So minus 2 है तो 1 upon 5 का स्क्वायर. 1 upon 5 के स्क्वायर को आप 1 upon 25 भी लिख सकते हो. चलो अभी हम नेक्स्ट सम पे जाएंगे. Here again 5 into 5 raised to 2n plus 2 minus 5 raised to 2 into 5 raised to 2n. अब इसमें दो टर्म्स है माइनस के इस तरफ और उस तरफ. 5 into 5 raised to 2n plus 3 minus 5 square n plus. सो ये आपका हो गया. अभी देखो पहले इसने को सिंप्लीफाई करते हैं. तो 5 रेस टू कुछ नहीं होता है तो 1 होता है. सो ये हो जाएगा 2n plus 3 माइनस इन दोनों को भी ऐड कर दो 5 रेस टू 2n plus 2 नीचे 5 रेस टू 2n plus 4 क्योंकि ये 1 ऐड हो गया इसमें 5 रेस टू 2n plus 2. अब देखो सब में से 5 रेस टू 2n कॉमन है वो हम ले लेंगे कॉमन. तो बचा क्या हमारे पास में यहाँ पे न्यूमरेटर में 5 रेस टू 3 5 रेस टू 2. डिनोमिनेटर में भी 5 रेस टू 2n कॉमन. बचेगा क्या आपके पास 5 रेस टू 4 माइनस 5 रेस टू 2. अब ये वाला पूरा टर्म आपका कैंसिल हो गया. 5 का क्यूब मतलब 125 माइनस 25 अपॉन 5 रेस टू 4 625 माइनस 25. सो ऊपर आ जाएगा 100 अपॉन 600. सिंप्लीफाइंग 1/6. यस 11th and 12th आप लोगों को खुद से करना है डेफिनेटली. नाउ कमिंग टू द 14th वन. देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं 49 मतलब 7 का स्क्वायर 343 मतलब 7 का क्यूब. तो क्या हो जाएगा भाई बहुत आसान है. देखो 2n plus 3 ये तो ऐसे ही रहना है. 7 raised to 2n plus 4 हो गया. डिनोमिनेटर में चले जाओ आप वहां हो जाएगा 7 raised to 3n plus 3. हाँ ब्रैकेट के बाहर आपका 2/3 था. तो देखो 3 इसमें सब में कॉमन है तो ये 3 और 3 कैंसिल कर देंगे अभी हम. 7 raised to 2n plus 3 माइनस 7 raised to 2n plus 4. ये 3 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया. तो अब ये देखो यहाँ से 3 हम अंदर भेजते ही नहीं है ऐसा कर देते हैं. ये सोच लो आप कि ये 1 ही था. सो ये 3 कैंसिल तो अब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 2n प्लस थोड़ा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अच्छे से ध्यान रखो हो जाएगा. 7 raised to 2n न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है. अभी यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 7 raised to 2n तो 7 raised to 2 बचा. अभी ये वाली चीज कैंसिल हो गई बाकी आपको कर लेना है. ठीक है 7 का क्यूब और 7 raised to 4 का पावर आपको डालना है और ये सम सॉल्व कर लेना है. देखो 7 का स्क्वायर 49 है 7 का क्यूब अभी मैंने बताया 343 7 raised to 4 क्या है वो आपको 2401 ये हम डाल देंगे
और इसमें से अभी आपको 343 माइनस करना है, सो 2058 डिवाइडेड बाई 49, ऑफ कोर्स माइनस है, डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा -42। नाउ दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ सम। इसमें देखो फिर से हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी द होल क्यूब विच इज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो अगर मैं x और 1/x पे लगाऊं तो ये देखो ऐसे हो जाएगा, और ये x और x यहाँ पे कैंसिल, विल गेट दिस। सिमिलरली इन लोगों ने यही चीज को यहाँ पे यूज किया है, बट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x रेज टू 1/3, मतलब वो क्यूब रूट ऑफ x होता है। तो अगर ऐसा बोलूं मैं, क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 क्यूब रूट ऑफ x, इस तरह से लिखा है इन्होंने, और यहाँ पर है क्यूब रूट ऑफ x, उसका होल स्क्वायर है, प्लस 1 प्लस 1 क्यूब रूट ऑफ x, उसका होल स्क्वायर। तो ये चीज है आपकी यहाँ पर, इसको अच्छे से देखो, अगर इस फॉर्मेट से चेक करोगे सो यू कैन गेट इट कि ये है क्यूब रूट ऑफ x, यहाँ पे माइनस की साइन है तो माइनस 1 क्यूब रूट ऑफ x द होल क्यूब, क्योंकि ये क्यूब का फॉर्मूला था तो हम यहाँ से यहाँ पहुंच गए। हाँ, इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये क्या बन जाएगा भाई, बिल्कुल। तो अगर हम इसको अच्छे से लिखेंगे तो ये क्यूब्स क्यूब्स हटा देंगे हम, और सीधा बिल्कुल। सो देखो, हाँ होल क्यूब इंडिविजुअल क्यूब्स में डालेंगे, सॉरी। तो ये बन गया आपका x, क्योंकि क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो जाता है, देखो 1/3 इंटू 3 आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमें ये बताने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसका क्यूब रूट का क्यूब करेंगे तो वो x ही आ जाएगा, और इधर 1/x, so this will be your answer. नाउ सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई सबसे इजी क्वेश्चंस में से एक होता है। a raised to 7 प्लस 4 प्लस -6 प्लस 0, तो बहुत सिंपल है। a raised to 7 प्लस 4 11, 11 माइनस 6 करेंगे तो 5, 5 प्लस 0 विल बी 5 ओनली, सो a raised to 5, बहुत आसान। इधर भी यही है, a raised to 4/3 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये आपका दिख रहा है प्लस माइनस है तो हम क्या करेंगे, a को नीचे ले जाएंगे एंड इट बिकम्स 2/3। नाउ वी ऑल नो, अगर हमको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बनाना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, सो a raised to 2/3, सो a raised to 4/3, और क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे 4/3 प्लस 2/3, LCM a raised to 6/3, that is a raised to 2। यहाँ पे भी वही करना है, थर्ड वाले में आप देखो क्या बोला, a raised to -1, so 1/a प्लस 1/b, और इधर डिवाइड की साइन डाल दो, 1/a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर। अभी देखो क्या करेंगे, एलसीएम ले लो जरा, b प्लस a/ab, और ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन कर दें, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ एलसीएम करो, उसके बाद करो आप। तो एलसीएम करोगे आप तो आपका आएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखो आपको आंसर दिख रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर ऊपर चला गया, यहाँ पे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला भी है, यहाँ से ये एक और एक कट गया, b प्लस a इंटू ए बी, और इसको करेंगे तो b माइनस a b प्लस a, तो ये देखो b प्लस a गया, सो ए बी अपॉन b माइनस a, फाइनल आंसर आपका। नेक्स्ट, ये भी वैसा ही है, देखो बीच के सम्स आपको खुद से कर लेने हैं, सारे एक ही पैटर्न है, सो 1/a इंटू 1/b, डिवीजन की साइन 1/a प्लस 1/b, बीच में प्लस है तो एलसीएम लेना तो जरूरी बनता है आपका, सो ये हो जाएगा b प्लस a अपॉन ए बी। देखो मैंने क्या किया, ये b यहाँ ले गया, ये यहाँ ले गया, एलसीएम ऐसे भी ले सकते हो आप, ठीक है। यार ये नॉलेज आपको अच्छे से ग्रास्प करनी है, एलसीएम में मिस्टेक नहीं चाहिए। अभी
आपका डिवीजन है तो डिवीजन को हम बना देंगे मल्टीप्लिकेशन, बहुत सिंपल, a प्लस बी। ये और ये कैंसल, 1/a प्लस बी। तो अब देखो ये सिंप्लीफाई बहुत ही इजी है। अच्छा ये वाला, ये भी देखने में ऐसा लगेगा और इतना बड़ा सम है, बट है बड़ा इजी। ये क्या हो जाएगा, 1/ab प्लस 1/bc। देखो सब में माइनस है तो वो नीचे डिनोमिनेटर में चला गया, सी है। अभी अच्छे से सोचना है आपको, डिनोमिनेटर का ही सिर्फ एलसीएम लेना है। तो ये क्या एलसीएम देगा आपको, ए बी और सी, क्योंकि इसमें ए बी सी तीनों टर्म है। अब ए बी सी में से यहाँ पर क्या नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे सी नहीं आया तो सी आ जाएगा। इधर ए बी सी में से क्या नहीं आया, ए। इधर ए बी सी में से क्या नहीं आ रहा है, बी, तो ये आ गया। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी सी, और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी प्लस सी। ये जो है इसको हमने थोड़ा ऑर्डर में समझा के लिख दिया, ए प्लस बी प्लस सी में। तो ये और ये कैंसिल, आपका आंसर बच गया ए बी सी। बड़ा सिंपल। चलो अभी आएगा आपका नेक्स्ट पैटर्न, प्रूव दैट। ये आपने लास्ट ईयर भी किए हुए हैं, मतलब ये सारे सम अभी तो लास्ट ईयर तक आपने किए हुए ही हैं। 21 से आपका नया चालू होगा, क्वेश्चन नंबर 21 से। अब देखो ये डिनोमिनेटर में है तो ए माइनस बी हो गया, और इसके ये साथ में तो दिया वही ए प्लस बी। फॉर्मूला लगा दो, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। वैसे ही दूसरे वाले टर्म में भी आप करो, बी माइनस सी बी प्लस सी, तो एक्स रेस टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे भी सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, एक्स रेस टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सबको साथ में ले लो, एक्स रेस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस आएगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो ये सारे कैंसल, ये प्लस माइनस थे, तो एक्स रेस टू 0 विच इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू आर एच एस। बड़ा सिंपल। नेक्स्ट वाला भी वैसे ही। अब इस बार हमको हर बार एक ही टेक्निक नहीं है कि भाई माइनस ही करेंगे, इस बार हम स्प्लिट कर देंगे दोनों को इंडिविजुअली। 1/ab, देखो ये ए बी मैंने इस पे और इस पे दोनों पे स्प्लिट कर दिया, एक्स रेस टू बी इंटू 1/ab, ए कट बी कट, सो एक्स रेस टू 1/b एंड एक्स रेस टू 1/a। वैसे ही इसको करोगे तो आपका बचेगा एक्स रेस टू 1/c एक्स रेस टू 1/b, और ये तीसरे वाले टर्म का करोगे तो वहां आपका बचेगा एक्स रेस टू 1/a एक्स रेस टू 1/c। अब देखो अच्छे से सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, ये और ये गया, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो आपका बचा क्या, इज इक्वल्स टू 1 विच इज आर एच एस। हाँ बीच के स्टेप्स आप लोग सॉल्व करोगे बिल्कुल से। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये वाला देखो, इसमें भी ऐसे ही है, एक फॉर्मूला लगेगा, एक्स रेस टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। तो ये क्या बन जाएगा, अभी हमने देखा था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, कोई फॉर्मूला है नहीं है। सो हमको मल्टीप्लाई, लिटरली मल्टीप्लाई करना है। तो देखो आपको आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, बता देता हूँ मैं, वही है बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन जो हमने एक्सपेंशंस में सीखा था, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी। अब माइनस बी से करो तो माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो हटा दो, ये और ये कैंसिल हो गया, बाकी सब तो एज इट इज है, ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। लिख दो इधर, ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। तो सब में ये बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन करके आप लिखोगे तो ये आएगा। अब देखो इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, अगर मैं इसको एज इट इज ले लूं और इन सबको ऐड कर दूं तो क्या होएगा, ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी। ये लाइन हटा देते हैं अब हम, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो जितनी चीजें कैंसिल हो रही है, मुझे सारे कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं, आपको दिखें, देखो ये प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए सी प्लस ए सी, इस तरह से माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर माइनस दिस, everything has gone, x raised to 0 which is equals to 1 and which is RHS. So this is how we come to here. Now on the next